और कर्नाटक गोवा निदेशालय के सीनियर वारंट ऑफिसर प्रज्वल तेंगिनकई। Thank you so much for having me. Pleasure is all mine, by the way. I'm Cadet Warrant Officer Prajwal Tenginkai, and I hail from the vibrant city of Belgaum. I'm currently studying Bachelor's in Business Administration at St. Joseph's University, Bangalore. So I represented Karnataka and Goa at All India Vice Senic Camp 2023 last year, and my Republic Day Camp 2024 this year. So NCC join करने का तो when I was in school, my school had all three wings, quite rare. सारे स्कूलों में तीन तीन विंग होती नहीं है. माई स्कूल सेंट पॉल्स हाई स्कूल वी हैड ऑल द थ्री विंग्स, आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स. एंड बचपन से मैं जब रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे में जब मैं जाता था तो देखता था कि ये जो लाइट ब्लू ग्रे यूनिफॉर्म है इसको हम बोलते हैं, देख के हमेशा उसको थोड़ा सा लगता था कि यार ये लोग अलग हैं, ये अलग है. एंड देन दैट स्मॉल किड ऑलवेज वांटेड टू आई सी कि देयर इज वन कैडेट सर्जेंट लीडिंग द कंटिजेंट. सो आई ऑलवेज वांटेड कि यार मेरे को वो लीड करना है, एक दिन वहां पे रहना है. And then that aspiration grew deeper, and that's how I joined NCC in my junior division as well, and I continued, and वही चलता रहा. And आगे मैं किससे बताऊंगा आपको जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन को कैसे मैंने जोड़ रखा था अपना, how that journey motivated this journey. That was my motivation to join NCC. Sir, so as I told you कि when I was a junior division cadet, I जो वो लोग भी RDC करते थे तो I went on till IGC. IGC तक मैं गया as a JD, and due to some reasons I was for IGC I was a reserve best cadet of Belgaum group, and I couldn't reserve best cadets को उतना ध्यान देते नहीं थे. And culturals, I was good at emceeing NIP वगैरह, I would have the lead role, but culturals was not that great. So maybe I got out tub. And before that, I was not interested in joining NCC as a senior division cadet. I was not at all interested. Whenever someone used to ask me, will you join as a senior division cadet? I used to say, nahi bhai, मैं नहीं करूँगा. And as soon as that result sheet came out and my name was not there, instantly I was like, nahi, I will join as a senior division cadet. And since I have accepted rejection here, I will accept everything and I'll work for everything that NCC has to offer for me. That was my motivation to first attend the Vaisainik camp, and then in the same year try for Republic Day camp. This was it was not something that came on to me suddenly after I joined NCC as a senior division cadet. It was not that. The 14-year-old had already planned कि भाई करना है तो करना है, पहले तू वाइसैनिक कैंप करेगा, because I'd seen my seniors. I've had a great set of seniors even when I was a junior division cadet who've done two camps in 1 year, so that they were also my motivation. So from there I picked on, and then I thought कि वाइसैनिक कैंप, रिपब्लिक डे कैंप, and then second year में रहूंगा, वाईपी हो जाएगा तो बस, then I'll go on. Sir, Republic Day camp, I would call it the epitome. It is the highest. इससे बढ़कर I don't think NCC will give you any exposure. RDC में जो आपको exposure मिलता है, that exposure is entirely different, which is why everyone should try getting selected for Republic Day camp. What happens in Republic Day camp is there are various events. You might have seen on the Republic Day there is NCC contingents that march on the Kartavya Path. Those are all the people who are selected in Republic Day camp. There is a Prime Minister's rally which happens on either the 27th or the 28th of January, where the Prime Minister himself comes and attends the entire program. There is Guard of Honor, which is given to all the dignitaries, the people you read and you talk about in your groups. You read about them in the जो आप न्यूज़पेपर में उनको पढ़ते हो, वो लोग आपके साथ आपको मिलने के लिए आएंगे. You are not going to meet them. They will come and meet you guys. And I don't think there is any other camp that will give you that much exposure. We have, I'll give you an example. The very first dignitary that came in was the Vice President of India. Then all the three service chiefs, CDS, CM of Delhi, Defense Minister. We had, and again to take this, you should also take this as motivation.
whoever is watching, we some of us, थोड़े लोगों को सिलेक्ट किया जाता है एंड देन हमें रक्षा मंत्री के साथ डिनर के लिए लेके जाते हैं मानेकशॉ सेंटर. Manekshaw Center, for the ones who don't know, is that prestigious place where no amount of money can get you in. वो फौज की एक ऐसी जगह है जहां पे तुम पैसा देके अंदर नहीं जा सकते. It is only meant to celebrate all the victories that the army and the defense forces have. So we had dinner with the Raksha Mantri there. So all of, if you think all of this is just material, I will give you points to go for RDC that will change in you. If you talk to me, if you would have spoken to me before Republic Day camp and after Republic Day camp, you will find a lot of difference. 101%, because the personality, everything is changed no matter what field you are in. आप culturals में हो, आप drill में हो, आप best cadet में हो, doesn't matter. आपका personality change होगा. The way you walk, the way you talk will change. एंड जिनको लगता होगा कि हमारी ड्रिल अच्छी नहीं है, आई कांट गो फॉर रिपब्लिक डे कैंप इज नॉट जस्ट ड्रिल, इट इज अ लॉट मोर. देयर इज कल्चरल्स. इतना सर मैं आपको बताऊंगा, इतना सुंदर लगता है कल्चरल प्रोग्राम वहां पे, क्योंकि 17 डायरेक्टरेट्स, all the 28 states and 8 union territories are present there. They are showing their own culture through a set of performances. And you look at that, and I would have sat there. मैं इतने हुए मेरे दिन जब मैं ऐसे बैठा था, ऐसे मुंह खोल के बैठा था कि ओह ये क्या चल रहा है. उतना it is so beautiful. The people you meet, the officers you meet, it is a whole different ball game. So RDC as a camp is the very prestigious camp. If you are looking for an opportunity that will change you, that you want to experience, you should go for RDC. Here the thing is, the army wing cadets will have a lot of competition, because there are I think 700 units in the entire country, and there are I think 74 or 64 air units and naval units also. So the competition that army cadets will go through will be a lot. So they will start with their inter-unit, inter-battalion, and the competitions will start. So first of all, the basic building blocks of best cadet are your written competitions. In the written competition, you will have your service subject, your common subject, and your general knowledge / current affairs. It will be of 150 marks. Second is your firing. Firing will be of 3 positions: standing, lying, kneeling. 5 points, 50 points each. Goes on to 150 points. Then comes your personality. Personality test के अंदर आपका होता है group discussions, your interviews. ये सब आते हैं हमारे personality के अंदर. So when you're focusing on all of these things, फिर आपका ये भी आता है individual DST, drill की भी बात आती है, because you're a best cadet, you are working towards being a complete version, a complete package हो आप बस आप ड्रिल नहीं कर रहे, आप सिर्फ कल्चरल नहीं कर रहे, आप सब कुछ कर रहे हो, तभी आपको वो बेस्ट कैडेट बुला रहे हैं कि आप सब हर जोन में आप कैप्चर्ड हो. So the selection process will go on with the same procedure. The evaluators will evaluate you on continuous basis. First at your intergroup level. सब वहाँ पे बच्चे सिलेक्ट होके अपने ग्रुप के इसमें आएंगे और अपने ग्रुप के बेस्ट कैडेट्स बनेंगे. फिर वो जैसे ही अपने ग्रुप्स के बेस्ट कैडेट्स बनते हैं, सेम डिफरेंट कैटेगरीज, देयर आर 9 कैटेगरीज, एंड दे गो ऑन to coming to the directorate where all the groups compete among themselves. I'll give an example. Karnataka and Goa directorate has 6 groups, and all of these 6 groups will compete in an inter-group competition. That is where the actual team is made, in the inter-group competition. So वहां पे जब आप आओगे, उधर आओगे, you will meet your fellow competitors, and आपके बीच में एक competition होगा. And in that competition, whoever is on the top 1, top 2, depends on the directorate, जितने भी सिलेक्ट करने हैं वहां से. यूजुअली हमारे डायरेक्टरेट से तो गोल्ड और सिल्वर जिसको मिलता है आईजीसी में, उनको आगे लेके जाते हैं बेस्ट कैडेट के लिए. सो यू विल हैव 2 पीपल कंपीटिंग फॉर दैट वन स्पॉट. सो व्हेन यू कम ऑन टू प्री आरडीसी 1 पे आपको सारे बेस्ट कैडेट्स, आपको देयर विल बी अ शॉर्टर टीम
that you'll have to compete against. Either you'll be competing with one or maximum two of them. So that is, you will have to compete with them on the same basis. Basis change नहीं हो रहे, रिटर्न फायरिंग वो सब कुछ साइड बाय साइड चल ही रहा है, एंड देन आपको इनके साथ compete करना है. फिर उसके अंदर जो भी बेस्ट होगा, the directorate will decide on one. There is only one best cadet in the end, in each category. So 9 best cadets go from each category. जम्मू एंड कश्मीर को एक्सेप्शन है, वहां पे एयर यूनिट है नहीं, तो वहां से 6 आते हैं, बाकी सब तरफ से 9 आते हैं. 9 have to come. That is Army, Navy, Air Force, and in Army, Navy, Air Force there is HD, SW, and JD/JW. If there are any JDs or JWs watching, आपके लिए आपको compete करना पड़ेगा लड़के और लड़कियों दोनों के साथ. आपके पास नहीं है ऑप्शन, आप में से कोई एक ही जाएगा. और SDs का सेपरेट होगा, SWs का सेपरेट होगा. So that is how, and then there is nine of them competing for the All India Best Cadet competition. वहाँ पे one from each category. Again sir, the bases won't change. As I said, bases won't change. वही है, written, firing, सब कुछ सेम रहेगा. बट वहां पे क्या होता है, वहां पे आप हर स्टेट के बेस्ट बंदे से लड़. Whoever your competitor is the best from his state. So the competition will be very high, very high. So आपको पहले दिन से लगा होना. So दिल्ली में as soon as you go, the very first day will be your written exam. The very first day आपको रिटर्न मिलेगा 150 मार्क्स का. 150 मार्क्स में if you cross 105 marks, you will get 5 additional points. अगर आप 105 मार्क्स को क्रॉस करते हो तो आपको 5 एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं. एंड देन योर एक आई थिंक 5-6 दिन के गैप के बाद आपका दिस कैन चेंज रिपब्लिक डे कैंप्स अकॉर्डिंगली, ईयर वाइज कभी भी चेंज होता है. बट बेसिक हमारा जो था, मैं आपको बताऊँ, उसके बाद था हमारा फायरिंग. जब फायरिंग की बात आई तो फायरिंग में सेम 3 पोजिशंस, 5-5 बुलेट देंगे आपको और आपको फायर करना है. एप्लीकेशन फायरिंग होगा, ग्रुपिंग नहीं, एप्लीकेशन फायरिंग होगा. So everyone has to make sure from the directorate as well that your rifles are zeroed, so that where you're aiming, आपके bullets वहीं पे जा रहे हैं. Otherwise you lose out on points. And firing में भी, if you cross 120 or 125, you will get 5 additional points. Same उधर भी. These are bonus points which you opt for. This will make a difference. 5-5, 2-2 points से difference बन जाता है. And after firing is your personality test. Personality test के अंदर आएगा आपका, इस साल हम जब गए थे, बेस्ट कैडेट्स के लिए ग्रुप डिस्कशन नहीं हुआ. वाईपी कैडेट्स जो सिलेक्शन के लिए जा रहे थे उनके लिए हुआ, हमारे लिए नहीं था. हमारे लिए एडीजी इंटरव्यू था डायरेक्टली, द एडिशनल डायरेक्टर जनरल इंटरव्यू. इट्स अ पैनल इंटरव्यू. तो वहां पे यू विल फाइंड वन, आर एडी, द एडिशनल डायरेक्टर जनरल वाज फ्रॉम नेवी, एंड देयर विल बी वन ऑफिसर फ्रॉम द इंडियन आर्मी एंड वन ऑफिसर फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स. तो अरे बलून्स कहाँ से आ रहे हैं? हाँ. So there will be a panel interview. So इस panel interview के अंदर you will find them asking questions, and it will be a short interview, ज़्यादा time नहीं लेगा. And they will ask you, first question will be obviously, tell me about yourself. And ऐसे start होगा आपका personality. They want to judge you on your personality. And when it comes to personality, what I would suggest is, if they ask you who is the president of Tanzania and you don't know, it's fine. It is completely fine that you don't know. But if they ask you 5 years ago, what were you doing? You should have an answer for that. It is about you knowing yourself properly. बाहर की दुनिया चलेगी, important है, knowledge रखना बहुत जरूरी है. But when it comes to your personality, आपके अंदर की जो बात है वो बहुत जरूरी है. So personality interview का वो हो गया. आपका individual drill test होगा. Drill test के अंदर वही 14-1-2, all that procedure अब वो आपको पहले से बता देंगे कि ये procedure follow करना है. Individual DAC के बाद you will have your word of command where you will be given a squad, and वो squad को आपको control करना है. That will be a little tricky because हमें क्या किया गया था, हमें एक पेपर दिया गया था, और पेपर के ऊपर जैसे रोड मैप होता है, मैं दिखाता हूँ आपको. जैसे ये समझो ये पेपर है, एंड इसके ऊपर हमें ऐसे, ये आप देख रहे हो, ये ऐसा मैप बना होगा. एंड दिस इज हाउ, एंड यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए कि इस लाइन पे आपको 15 स्टेप लेने हैं, यहाँ पे 10, यहाँ पे 32, ऐसे करके. सो दैट विल बी अ लिटिल ट्रिकी. आपको काउंट करना है
मतलब वो लोग जब मार्च कर रहे हैं आपको देखना है, ओके 1 2 3 4 ऐसे काउंट करके, एंड देन करेक्ट टाइम पे आपको कमांड देना है। एंड अगर आप करेक्ट टाइम पे कमांड नहीं दोगे तो स्क्वाड एक तो जजेस के पीछे चल जाएगी, या फिर ग्राउंड के होता है वहां पे भी होता है, दिल्ली में भी होता है। तो आपको स्क्वाड ड्रिल ऐसे, आपको अगर आप ट्रेन करोगे तो देन यू विल हैव नो प्रॉब्लम्स। एंड हाँ, उसके बाद द शॉर्टलिस्टेड कैडेट्स, यहाँ पे जब ये सब हो जाता है तो टॉप 5, सारे सारे कैटेगरीज का टॉप 5 निकलते हैं, और उन टॉप 5 को भेजते हैं डीजी द फाइनल। जो बॉस बैठते हैं एनसीसी के, तो बैठ के वो आपसे आराम से क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 5 6 मिनट का इंटरव्यू चलेगा, उतना उससे ज्यादा नहीं चलेगा। उसके अंदर आपसे पूछेंगे सेम आपके पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चंस, एंड उनके पास टाइम नहीं होगा, वो आपको जल्दी से एसेस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको मेरे डीजी इंटरव्यू का एग्जांपल देता हूँ। मेरे डीजी इंटरव्यू में आई हैड, अब जैसे मेरे को शायरी और पोएट्री करना बहुत पसंद है, तो मेरे एडीजी इंटरव्यू में जब मैंने अपनी शायरी सुनाई थी तो उनको बहुत पसंद आई, और मेरे को पता चल गया कि हाँ भाई। और मैं पहले से सोच के आया था कि डीजी को शायरी सुनानी है, मेरे को एक शायरी तो सुनाऊंगा डीजी। तो अपना मैंने बेस्ट वाला जो था मैंने वो रेडी रखा हुआ था। एंड डीजे इंटरव्यू के लिए जब हम गए, एंड लंबा चौड़ा एक इंटरव्यू का आपका इंट्रोडक्शन होता है, दैट इंट्रोडक्शन इज वेल रेड, आप पहले से बोलते जा रहे हो तो आपको पूरा रटा हुआ होता है वो इंटरव्यू। तो जैसे मेरे फर्स्ट 4 लाइंस में आता है मेरा नेम, मेरा एजुकेशनल जर्नी, वेयर आई कम फ्रॉम, एंड माय फोर्थ लाइन इज आई वांट टू जॉइन, आई एस्पायर टू जॉइन द इंडियन आर्मी एंड बी अ पार्ट ऑफ वन पैरा एसएफ। एंड उसके आगे आता है मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरा हॉबीज, और मेरे लास्ट में आते हैं मेरे अचीवमेंट्स। तो मैं बोला था कि हॉबीज तक तो सुन ही लेंगे, शायरी वायरी तो कुछ पूछ लेंगे। एंड जैसे ही मैंने बोला वन पैरा एसएफ, उन्होंने मेरे को वहीं रोक दिया और बोला कि ओके टेल मी अबाउट वन, और वो स्टार्ट हो गए। तो 3 4 मिनट हुआ, 3 4 मिनट के अंदर सर उन्होंने मेरे को इतने सवाल, रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछे, एकदम फटाफट फटाफट, बिकॉज द डीजी लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह, ही इज फ्रॉम 3 पैरा एसएफ, so he has a lot of knowledge वहां से para SF का। तो so he wanted to test my SF knowledge, so he started asking me questions about SF, and then once he thought कि हाँ इसको थोड़ा बहुत पता है SF के बारे में, then he is also served in Belgaum, मेरे शहर में कमांडो ट्रेनिंग स्कूल है, so he is also served there, so he knows about Belgaum as well। तो उन्होंने बोला कि इसको अब मैं बेलगाम के क्वेश्चन पूछूं, तो बेलगाम के क्वेश्चन पूछे बैक टू बैक, एकदम रैपिड फायर 3 4 क्वेश्चन। मैं जैसे बाकियों को पूछा था कि आपका इंटरव्यू कैसा था, तो मेरे को बोल रहे थे कि हाँ भाई अच्छा था इंटरव्यू, और 3 4 सवाल पूछे, 5 6 मिनट का इंटरव्यू चला। बोला अच्छा ठीक है चिल होगा। तो मैं गया, मेरे 3 मिनट के अंदर मेरे को 12 क्वेश्चन फेंक के मारे, एकदम बैक टू बैक बैक टू बैक। तो मैंने फिर भी जवाब दिया जो जो मेरे को देना था, एंड देन हो गया जो होना था। तो हाँ, बेस्ट कैरेट का तो यही होगा इंटरव्यू। एंड एडिशनल पॉइंट्स जब आपको मिलते हैं, ये आपको आएंगे कल्चरल्स और फ्लैग एरिया से। कल्चरल्स और फ्लैग एरिया, इफ यू आर अ पार्ट ऑफ कल्चरल्स, each event will fetch you 10 points. Each event will fetch you 10 points, and flag area will also get you 10 points. You can get a maximum of 30 points like this. ये 30 points आपको मिल सकते हैं। So I was a part of flag area. Flag area briefing में था, group song, and I was in क्या होता है हमारा group song, NIP and flag area. तो I was a part of that. And जब ये सब चल रहा था, तो इतना सब आपको एडिशनल पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो ऑल ऑफ दैट कंबाइंड यू विल गेट अ एनुअल स्कोर शीट। एंड उसके अंदर सबसे पहले आपको सिर्फ ये बताएंगे कि गोल्ड किसको मिला, सिर्फ। यस सर, दिस वाज आस्क्ड टू मी इन माय इंटरव्यूज एज वेल। तो आई गेट दिस अ लॉट बाय द वे। जब ऑब्वियस है, जब आपके सामने कोई बंदा एयरफोर्स का यूनिफॉर्म पहन के बैठा है एंड वो बोलेगा कि मेरे को आर्मी ज्वाइन करनी है, ऑब्वियसली थोड़ा वो सवाल पूछेंगे। तो the reason why I want to join the Indian Army is because I feel that my skills and my abilities lie best and will shine more brightly in the Indian Army. And when I started reading up more about the Indian Army and the Special Forces, one name came to me, that Major Mohit Sharma, अगर किसी को पता होगा तो। Major Mohit Sharma, also he was in 2004 शोपियान में एक उन्होंने अंडर कवर जाके उन्होंने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया था, एंड 30 days he stayed with a terrorist, and हाँ,
एंड वापस आते आते अबू तोरारा एंड अबू सब्जार, ये दोनों टेररिस्ट को यहाँ पे गोली मार के एक कप कावा कॉफी पी, वहाँ पे कावा पी के फिर वहां से निकले थे. सो व्हेन आई And he हर्ड दैट was from स्टोरी, one. he was all from one para सिर्फ. So which is why my मेरे अंदर का थोड़ा सा कीड़ा जगा कि भाई ये करना है वन पैरा. So that is And how. Garud, like, So Garud, obviously Garud commandos are absolutely lethal, very brutal men. But when I started, जब मैं पढ़ रहा था and I started reading की more, obviously the Indian Army will be more involved in the valleys and in operations. अगर आप देखोगे तो the Indian Army will be more involved. that is And something their core job is like. yes, sir, that is the core Someone job. goes to Indian Air Force, then go as a pilot. वही तो ऐसे. So So that that is something my, core. yes, sir, that is my personal opinion कि I would join the one para. So every day will be different in the Republic Day camp. Every day you wake up, आपको कुछ ना कुछ और कराएंगे वहाँ पे. So we used to wake up around 4:30 उठ के we used to set up a line area. Line area, the maintenance of line area is a very hectic job. बहुत बहुत दिमाग खराब होता है वहाँ पे. बट करना होता था, सब कुछ झाड़ू पोछा लगा के यू हैव टू मेंटेन दोज मिलिट्री स्टैंडर्ड्स. तो सब कुछ सेट करके हम लोग, उसमें टाइम लग जाता था. तो उसके बाद हमारा फॉलन होता था. फॉलन करके फिर बेस्ट कैडेट्स, अगर जैसे हमारा पहले दिन तो एग्जाम था तो हम लोग पढ़ने लग जाते थे. अगर एग्जाम कुछ नहीं है तो वी यूज्ड टू फोकस ऑन हेल्पिंग विथ अ लिटिल बिट ऑफ लाइन एरिया. एंड देन हमें ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाता था, तो ब्रेकफास्ट के लिए जाके आफ्टर ब्रेकफास्ट योर रूटीन स्टार्ट्स वहाँ पे. So every day you will have a different routine based on your category. अगर आप कल्चरल में हो तो कल्चरल इवेंट्स सारे बाय जनवरी फर्स्ट वीक बिफोर ऑल द विजिट सारे इवेंट्स खत्म हो जाएंगे, बिकॉज देन दे हैव टू प्रेजेंट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टू ऑल द कमिंग VIPs and VVIPs. So if your cultural program is shortlisted, so for that event you will start with your cultural practices. आप सुबह वहाँ पे कर दोगे. ड्रिल वाले जैसे गार्ड ऑफ ऑनर वाले होते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर वाले विल गो फॉर गार्ड ऑफ ऑनर प्रैक्टिस, एंड देन कर्तव्य पथ वाले विल गो फॉर कर्तव्य पथ प्रैक्टिस. बेस्ट कैडेट्स का जो भी होगा, बेस्ट कैडेट्स विल बी अ पार्ट ऑफ कल्चरल एज वेल. एंड अगर वो नहीं है तो फिर फ्लैग एरिया चलेगा. फ्लैग एरिया में आपको जाके बैठना है, क्योंकि एवरी डे देयर विल बी ड्रेस रिहर्सल्स होंगे. वहाँ पे आके चेक करेंगे कि आप कौन सा ब्रीफर है, अच्छा बोल रहा है नहीं बोल रहा, वो सब कुछ आके चेक करेंगे आपका. सो ऐसे होते होते लंच हो जाता है. एंड देन लंच के बाद अगर लंच कर लिया तो लंच के बाद वापस आएंगे, सेम रूटीन गोज ऑन. अगर प्रैक्टिसेस अपने अपने चल जाएंगे. इफ देर इज एन इवेंट दैट डे, इफ देर इज अ बेस्ट कैडेट इवेंट, फॉर एग्जांपल फायरिंग वगैरह कुछ है, तो फायरिंग के लिए आप लोग जाओगे. वहीं पे राजपूताना राइफल्स का एक फायरिंग ये है वहाँ पे, तो वहाँ पे फायरिंग रेंज पे आप जाओगे और फायरिंग करके आप वहाँ से खत्म करके आ जाओगे. And same goes for all the other events. If you have an event, you will be busy with that. You will go for all the uh, wherever you have to go and compete. वहाँ पे जो भी करना है और वापस आ जाओगे. So if you are not in any event वहाँ पे, तो आपको कहीं ना कहीं आप ये समझ लो कि आपको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखेंगे. आप फ्री बैठोगे नहीं. You will be involved somewhere. And best cadets के लिए तो at least till group discussion interview have to constantly read. आपको पढ़ना ही होता है, क्योंकि यू हैव टू गेन मोर नॉलेज. जब भी टाइम मिलता है आपको करना पड़ेगा. एंड वहां पे जाने के बाद अलग से सिलेक्शंस होती हैं फॉर हॉल ऑफ फेम. एनसीसी का वहाँ पे एक हॉल ऑफ फेम बना हुआ है. वो हॉल ऑफ फेम के लिए भी सारे VIPs आते हैं, उनको ब्रीफ करना पड़ता है उधर. फॉर दैट ऑल्सो यू गेट 10 एक्स्ट्रा पॉइंट्स, बट वो सेंट्रली सिलेक्ट होंगे. फ्लैग एरिया विल बी डायरेक्टेड वाइज, हॉल ऑफ फेम विल बी सेंट्रली, वहां से सिलेक्ट करेंगे. एंड देन MCs के लिए भी सिलेक्शन होगी सेंट्रली. वहाँ पे MC सेलेक्ट करेंगे 3 या 4. वो MCs को भी अपना दिन वहाँ पे कंटिन्यू, जो जिसका भी पार्ट होगा उनको रिहर्स करते रहना चाहिए. तो ऐसे. और जैसे ही अगर उस दिन किसी का विजिट है, तो विजिट के लिए अगर विजिट उनका अराइवल है 10:30, तो 8 बजे से सारी प्रिपरेशन शुरू हो जाएंगी. आपको जाके बैठना है, आपको रेडी होना है. सब आएंगे, सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, मल्टीपल सिक्योरिटी चेक्स. तो आपके पास आसपास आके सब कुछ चेक करके जाएंगे. यू हैव टू स्टे देयर एंड टिल द एंटायर इवेंट इज डन, आपको वहीं पे रुकना है. सो आफ्टर द guard of honor is given to the chief guest, they go for the flag area, सब कुछ करके they go for the cultural event. खत्म करके वो लोग आते हैं.
एंड देन आपका चलता रहेगा फिर बाकी का रूटीन। वो उनके साथ टी पार्टी होगी, थोड़े लोगों को लेके जाके उनके साथ वहीं पे टी पार्टी होगी। टी पार्टी के बाद वो चल जाएंगे, फिर आपका नॉर्मल रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। शाम में रोल कॉल होगा। रोल कॉल के अंदर दैट इज वन थिंग आई रियली लाइक कि जिसका भी बर्थडे होगा उस दिन, तो हर डायरेक्टेड को केक मिलता है। 17 केक आती है, और बर्थडे हो ना हो आपको केक मिलेगा। अगर किसी का बर्थडे होगा तो बाहर आएगा, सबके सामने केक वेक काटेगा। इज अ वेरी नाइस ट्रेडिशन। देन होगा आपका डिनर। डिनर के बाद 10 बजे एग्जैक्ट शार्प लाइट्स ऑफ। लाइट्स ऑफ अगर आपका 10 बजे नहीं होता, सीएमपी घूमती रहती है वहां पे आके, फिर आपको आपका रगड़ा पट्टी शुरू हो जाएगा फिर, अगर आप ये नहीं करोगे। बट आपको हम भी मतलब जब तक एग्जाम एग्जाम तो नहीं हुआ था, हम लोग ब्लैंकेट के अंदर ऐसे टॉर्च वॉर्च लगा के पढ़ते रहते थे, ताकि कुछ ना कुछ जाता रहे अंदर, दिमाग को खाली नहीं रखना। ऐसा होता है आपका डेली रूटीन वहाँ पे। Sir, all the three wings have their own set of qualities that differ from each other, and it is very beautiful. So when it comes to air wing, I'll tell you, air wing. I feel that Army, Navy, Air Force, तीनों में the best exposure will be air wing, because आपको flying करने का मौका मिल रहा है। Microlight और Virus aircrafts के अंदर you get to fly. As a senior division cadet, you have to complete 6 sorties before your C certificate. So that means 6 sorties of 20 minutes each. तो जो नॉर्मली आपको पे करके फ्लाइट में घूमना पड़ता है एज अ पैसेंजर, हियर यू आर फ्लाइंग एज अ को पायलट। आपको कंट्रोल्स दे रहे हैं, आप प्लेन उड़ा रहे हो। आफ्टर यू गेट अ लिटिल बिट ऑफ नॉलेज, आप ही कंट्रोल स्टिक पकड़ के आप सबको चेक कर रहे हो। फ्लाइंग इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। फ्लाइंग आपको भाई बाकी कहीं नहीं मिलेगा, आपको एयरिंग। आई थिंक दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है हमारा एरो मॉडलिंग। एरो मॉडलिंग एक ऐसी चीज है वेयर यू गेट टू लर्न। देयर आर 3 कैटेगरीज इन एरो मॉडलिंग एज वेल: स्टैटिक, कंट्रोल लाइन एंड आरसी। यू हैव टू बिल्ड एयरक्राफ्ट, एंड देयर बी कॉम्पिटिशंस ऐसे भी वायुसैनिक कैंप के अंदर। एंड द थर्ड डिफरेंस इज स्कीट शूटिंग। अगर किसी ने सुना होगा, स्कीट शूटिंग इज ओनली इन द एयर विंग, where you have to fire with a double barrel shotgun. There will be a moving target, clay pigeons होते हैं, वो उसको आपको मिड एयर आपको फायर करना है, हिट करना है उसको वहां पे। सो व्हेन इट कम्स टू ऑन पेपर ये 3 डिफरेंस कि इन दिस इज व्हाट वी गेट टू डू एंड द आर्मी कैडेट्स डोंट, आर्मी एंड नेवल कैडेट्स डोंट। तो आगे तो फिर वैसे तो बहुत सारी डिफरेंसेस होंगी, जो पर्टिकुलरली जैसे हमारा सर्विस सब्जेक्ट हो गया। आई कंसिडर पर्सनली कि एयर विंग एंड नेवल विंग की स्पेशल सब्जेक्ट जो होती है आर्मी विंग से ज्यादा टफर होती है, क्योंकि हमें फ्लाइंग वाइंग सब कुछ पढ़ना पड़ता है। स्पेशली इफ यू डू वायुसैनिक कैंप, यू विल नो व्हाट एग्जैक्टली इज देयर इन दैट बुक। आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए। So communication skills in general will take you a little ahead than the others. So थोड़ी सी बेसिक्स जरूरी है इंग्लिश के लिए। आपको यू शुड हैव फेयरली गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश टू सेल थ्रू, वरना थोड़ा सा फर्क पड़ता है। बिकॉज देर वहाँ पे दे आर जजिंग यू ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑन योर पर्सनैलिटी, यस, बट द वे यू स्पीक। एंड अगर आप बीच बीच में अगर 1-2 लाइन हिंदी की बोल दो तो भी चलेगा। इट्स नॉट एन इशू, वहाँ पे चल जाएगा। दैट इज नॉट एन इशू। बट द बेसिक थोड़ा सा यू हैव टू, अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट यू कैन नॉट सॉल्व। तो आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन के साथ, इफ यू कीप ऑन कंटिन्यूइंग, एंड इंग्लिश विल नॉट जस्ट हेल्प यू इन एनसीसी, इट विल टेक यू फॉरवर्ड इन योर लाइफ इन जनरल। यू हैव टू, द थिंग इज प्रायोरिटाइज, देयर इज नो प्रायोरिटाइजिंग कि मैं सिर्फ इंग्लिश बोलूंगा, मैं सिर्फ हिंदी बोलूंगा, नहीं। हिंदी को आपको, हिंदी के लिए आपके अंदर बहुत गर्व की बात है, यस, अ लॉट ऑफ प्राइड फॉर हिंदी, यस, बट यू कैन नॉट से कि मैं सिर्फ हिंदी में बात करूंगा या फिर मैं सिर्फ इस भाषा में बात करूंगा। बहुत सारी अलग भाषाएं जो कॉमन है, आपको थोड़ी सी एफर्ट्स डालनी पड़ेंगी कि वहां पे पढ़े, एंड देन दैट विल मेक यू अ बेटर पर्सन, क्योंकि आप यू आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग, आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली लर्न कर रहे हो। सो दैट विल, थोड़ी सी बेसिक्स तो है सर जरूर। Yes, YP and best cadet selections are almost the same, except that you don't get firing in YP selections. Firing नहीं होगा आपका, और I think इस साल इंटरव्यू भी नहीं हुआ था। So you will go for your written exam, written आपको देना पड़ेगा,
रिटन के बाद आपका इंडिविजुअल डीएसटी आपको देना पड़ेगा, ग्रुप डिस्कशन आपको देना पड़ेगा. So when this procedure, it is a little similar क्योंकि written will be the same. The best cadet written exam and the YP written exam is the same. कोई change नहीं होगा उसके अंदर. So if you are a YP aspirant, you have to be with the best cadet. देख लो आपके आसपास जो भी best cadets है उनको पकड़ो और उनके साथ लगे रहो, क्योंकि हमारे वाले तो हमारे साथ लगे हुए रहते थे. जो भी थे हमारे साथ वो कॉन्स्टेंटली आके पूछते थे कि भाई ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, ये पढ़ूंगा चलेगा, ये पढ़ूंगा चलेगा. हम भी उनको गाइड करते थे कि हाँ ये कर ले, वो कर ले, ये इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है. सो रिटन इज वेरी इंपॉर्टेंट. योर कम्युनिकेशन स्किल्स प्ले अ गुड रोल इन योर वाईपी सिलेक्शंस एज वेल, बिकॉज यू विल हैव ग्रुप डिस्कशंस के अंदर सबसे जरूरी बात विच माय ट्रेनिंग ऑफिसर्स ऑलवेज टोल्ड मी इज फोकस ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स. क्योंकि आई टेल यू, आई गिव यू माय ओन एग्जांपल. जब मैंने स्टार्ट किया, जब मैं वायुसैनिक कैंप में था, मैंने अपना प्री आईजीसी ये सब मैं कहीं नहीं गया, मैं सीधा प्री आईडीसी 1 में मेरे को गया था, क्योंकि मेरी वायुसैनिक कैंप खत्म होने का टाइम हो गया था. तो आई डायरेक्टली वेंट फॉर प्री आईडीसी 1. तो व्हेन आई वेंट देयर एंड व्हेन आई स्टार्टेड विद द ग्रुप डिस्कशंस, आई कंसीडर माय सेल्फ टू हैव गुड सेट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. एंड बट व्हेन आई शुड टॉक, आई used to think that I'm talking very well, speaking very well. And then the feedback that I used to get was not what I expected. They used to tell me ki bring out more facts and figures. Then after a point I understand ki acha, theek hai, it is not just words, it is also numbers. Agar women reservation bill की बात हो रही है, then you'll have to bring in all the stats that you know. वहां पे एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ था, वो सब कुछ, मतलब आपके दिमाग में जो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आपको पॉइंट पे वहां पे लाने पड़ेंगे. एंड जब आप ये करोगे देन यू विल स्टैंड आउट. तो वहां से आपका नॉलेज बढ़ेगा, आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ेगी. एंड इंडिविजुअल डीएसटी तो आधे ड्रिल वाले और कल्चरल वाले ही होते हैं, एक्सेप्ट फॉर बीसी जो भी इसके लिए आते हैं. तो ड्रिल वालों का तो डीएसटी सही होगा ही, कल्चरल्स वालों को जो अगर डीएसटी सही नहीं है तो प्रैक्टिस करके हैंड स्विंग वगैरह इंप्रूव करके वहां पे आके सेम आपको डीएसटी परफॉर्म करना है. जब स्क्वाड ड्रिल होगा, स्क्वाड ड्रिल के लिए वर्ड ऑफ कमांड का प्रैक्टिस होगा. आपको 2 या 3 वर्ड ऑफ कमांड देने को आपको बोलेंगे, एंड दैट्स इट. उतने में आपका फिर एक मेरिट लिस्ट निकलेगा. एंड देन आपके नसीब पे है जो कंट्री आपको मिलेगी. आपको बांग्लादेश भी मिल सकता है, आपको रशिया भी मिल सकता है, वो सब कुछ आपके वो नसीब के ऊपर है बस. फर्स्ट पॉइंट इज, दिमाग से निकाल दो कि आपको एआईबीसी बनना है. फर्स्ट कि फॉरगेट, डोंट स्टार्ट इमेजिनिंग योरसेल्फ विद द प्राइम मिनिस्टर. दैट इज पॉइंट नंबर 1. डू नॉट थिंक कि गोल्ड इज एवरीथिंग. नो, it is always the process that you go through that will help you. So starting with your preparations every day, अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो, you have बहुत अच्छा टाइम है आपके पास अभी स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अभी आरडीसी के लिए टाइम है. and the sooner you start the better you get, simple as that. So constantly, if you every day, आपको I suggest कि at least 20 to 30 minutes in a day keep it aside for your current affairs and general knowledge. फोन पे आप, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, आपको हाथ पे ही सब कुछ मिल जाता है. करंट अफेयर पहले दिन का चेक करो कि आज क्या क्या हुआ, कल क्या क्या हुआ, एंड देन whatever time is remaining, go on to read something about your general knowledge, something about your geography, something about the constitution. सब कुछ एक बेसिक, जैसे सीडीएस के लिए आप प्रिपेयर करते हो वैसे उसका उतना हाई लेवल नहीं, बट थोड़ा सा उसका बेसिक्स आपको दिन ब दिन आपको नॉलेज रखना पड़ेगा. Current affairs will not just, as I said, it will not just help you with your written exam, it will help you in a group discussion as well. And when you know there is something backing you up here, you will have more confidence when you speak to an officer. You will know that you are not just there for any stupid reason. आपको पता है कि आपके साथ आपके बैक में बहुत सारा नॉलेज है और आप उसको बैक करके आप बहुत अच्छा बात कर सकते हो. So after that, what you have to do is first and foremost finish your service subject and your common subject. As soon as you do it, the certain amount of marks वहां पे जो भी आएगा वो आपका श्योर है. कॉमन सब्जेक्ट और स्पेशल सब्जेक्ट के वो बुक से अलावा और कुछ नहीं पूछेंगे, वो बुक से ही पूछेंगे. तो उसको पूरा रट लो आप, कॉमन सब्जेक्ट और सर्विस सब्जेक्ट. कॉमन सब्जेक्ट इज
कुछ नहीं है उसके अंदर, आराम से आपको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। सर्विस सब्जेक्ट, यस आई एग्री कि थोड़ा अगर किसी के पास नॉलेज है आपको उनको सिखाना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है, बट इफ यू रीड कॉन्स्टेंटली ऑल्सो दैट इज ऑल्सो फाइन। बट कॉमन सब्जेक्ट तो आप खुद से कर सकते, देयर इज नो स्टॉपिंग। तो कॉमन सब्जेक्ट एंड सर्विस सब्जेक्ट एज सून एज पॉसिबल खत्म कर दो, बी थरो। अगर सर्विस सब्जेक्ट आपको बीच में से उठा के क्वेश्चन पूछ लिया, आपको फिल इन द ब्लैंक पूछा, तो आपको वहां पे वो फिल इन द ब्लैंक क्या आता है आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारा जब मैं वायुसैनिक कैंप कर रहा था, थैंक यू टू ऑल इंडिया वायुसैनिक कैंप, आई वाज थरो विद माय स्पेशल सब्जेक्ट्स। मैंने आरडीसी में एक दिन अपना स्पेशल सब्जेक्ट पढ़ के खोल के मैंने पढ़ा नहीं है, क्योंकि सब कुछ हो गया था ऑलरेडी। एंड कॉमन सब्जेक्ट तो पढ़ते रह रहा था, क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट मिस हो गया था। कॉमन सब्जेक्ट आखिरी दिन तक पढ़ रहा था, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज जितना पढ़ोगे उतना कम है। करंट अफेयर्स नॉलेज इज एंडलेस, देयर इज कॉन्स्टेंटली थिंग्स हैपनिंग अराउंड यू, दिन ब दिन कुछ ना कुछ चल ही रहा है। देयर विल नेवर बी अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग। तो आपको बार बार बस पढ़ते रहना है। ठीक है, ये हो गया। अब फायरिंग प्रैक्टिस की, जब फायरिंग की बात आती है, फायरिंग प्रैक्टिस आप खुद से तो कर नहीं पाओगे, आपको यूनिट से सपोर्ट चाहिए। एंड अभी तो इन द एंटायर नेशन देयर इज शॉर्टेज ऑफ .22 एम्यूनेशन। .22 एम्यूनेशन मिल नहीं रहा, तो बहुत सारी यूनिट्स, बहुत सारे डायरेक्टरेट्स आर having shortage of .22 ammunition, and which is why the practice for .22 is getting a little delayed. So for that you will have to wait, but ask your unit for dry practices. Dry practices will help you more than actual firing. शीट आगे लगती है, आपको बैठो, आपका ब्रीदिंग जो भी है, ब्रीदिंग आपको करेक्ट करना है। ब्रीदिंग के लिए आपका सिंपल है, ब्रीद इन करो, हल्का सा ब्रीथ आउट करो, पॉज बिफोर फायरिंग, पॉज, एंड देन यू हैव टू स्क्वीज द ट्रिगर, नेवर प्रेस द ट्रिगर, स्क्वीज द ट्रिगर। फायरिंग की तो आई थिंक इफ देयर इज अ क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर इन योर यूनिट, आपको फायरिंग प्रैक्टिस से ही आपका इंप्रूव होगा। बाकी देयर इज नथिंग वेरी मिस्टीरियस अबाउट इट। देन कम्स योर इंडिविजुअल डीएसटी ड्रिल के लिए। अब जैसे जैसे साथ में पढ़ रहे हो, आई एम प्रीटी श्योर इफ यू आर एन एक्टिव एनसीसी कैडेट यू विल हैव ऑनगोइंग ड्रिल प्रैक्टिसेस, वहां पे चलता रहेगा। तो ड्रिल प्रैक्टिस वो भी कर ही रहे हो, साथ में साथ उसके साथ साथ हैंड स्विंग की प्रैक्टिस करना। हैंड स्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मी पर्सनली, मेरा हाथ उतना पीछे जाता नहीं था, तो बहुत सारी मतलब प्रैक्टिस के बाद हाथ में ईंट पकड़ के हैंड स्विंग कर करके, तो हाथ ऐसे अगर आप विंडो के ऊपर पकड़ोगे और नीचे बैठोगे, हाथ एकदम ऐसे पीछे स्ट्रेच होगा, दैट इज व्हेन आपका हैंड स्विंग थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होगा। तो दैट इज हाउ यू इम्प्रूव योर हैंड स्विंग। ये सब साइड बाय साइड आपको करना है। दिन में थोड़ा थोड़ा टाइम करो, 15 मिनट ड्रिल की प्रैक्टिस कर ली, ठीक है, 1 घंटा आपने सर्विस सब्जेक्ट कॉमन सब्जेक्ट पढ़ लिया, एंड 20 मिनट आपने इसको दे दिया अपने करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज। तो इतना सा टाइम भी काफी है कम्युनिकेशन स्किल्स और इन सब चीजों के लिए। मिरर में देखो और एक टॉपिक उठाओ, बात करो, एनी टॉपिक, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी यू, योर हॉबी, योर एनीथिंग। आप स्टार्ट कर सकते हो, एक उठाओ, एक मिरर उठाओ, एक कैमरा उठाओ, कैमरा रखो और आप स्टार्ट करो बात करना। अब जैसे जैसे बात करोगे आपका वो डे बाय डे आपको खुद इंप्रूवमेंट दिखेंगे उसके अंदर। तो ऐसे इतना अगर अभी से थोड़ा 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 टाइम में के लिए करोगे, आगे इट विल बी अ पीस ऑफ केक। आगे जाके फिर बहुत इजी हो जाएगा। फिर वहां पे कंपटीशन आपको मिलेगा, कंपटीशन से ज्यादा टेंशन नहीं लेना, अपने पे ध्यान रख, फोकस ऑन योरसेल्फ कि इतना इतना किया है, काम आएगा, काम आएगा। एंड प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोसेस में जो जो सीखोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड में अगर आपको गोल्ड आए, सिल्वर आए, नहीं मेडल नहीं आए, डजेंट मैटर, आपने सीखा है बहुत कुछ, बस काफी। I'll tell you, I was a tad bit of a procrastinator. I used to delay on things. थोड़ी अगर कुछ छोटा सा काम, अगर कोई बड़ा काम हो तो मैं कर लेता था, बट अगर कोई छोटी छोटी काम हो तो मैं उसको अवॉइड करता था। तो मैं सोचता था कि हाँ ठीक है, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। तो अगर कोई देख रहा, मतलब देर इज आफ्टर बीइंग द इंडिया बेस्ट कैट एज वेल, मैं कुछ अलग नहीं था इन सबसे, ठीक है। दैट सेम पर्सन हु जस्ट वांटेड टू डू मोर, वो एक चीज अलग थी बस। तो whoever is there thinking he wants to be the AIBC or a better individual in general, it starts with small efforts. That is what NCC has taught, small efforts. छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं। जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन का आपका है, if you are not about if you're avoiding it, do it right away, you will finish it off.
ऐसे ही एनसीसी में हमें यहाँ पे जब आप एक एसडी कैडेट होते हो, आपको एक्चुअली बहुत काम होता है। आपको यूनिट में अगर आपको कुछ काम दिया गया, आपके स्क्वाड्रन में, आपके कॉलेज में कुछ काम दिया गया, यू हैव टू मैनेज थ्रू दैट। वो करना है। सुबह वी यूज्ड टू हैव फॉल-इन्स एवरी डे। हमारे कॉलेज में हमारे रोज फॉल-इन्स होते थे। तो एवरी डे वी यूज्ड टू वेक अप एट 6:30। 6:30 फॉल इन के लिए हम लोग चलते थे, तो आराम से हम लोग 5:45 तक उठ के मुंह वूह धो के हम सीधा कॉलेज पहुंच जाते थे। 6:30 से हमारा पूरा ड्रिल विल स्टार्ट होता था, एंड ड्रिल के साथ साथ रगड़ा होता था, सब होता था। उसके साथ तो जो भी, ऑल माय थैंक्स टू ऑल माय सीनियर्स एज वेल, जिनकी वजह से एवरीथिंग दैट यू लर्न नहीं जाएगा वेस्ट। कि जितना रगड़ा खाओगे उतना तगड़ा बनोगे। तो खाते रहे बस। दैट एंटायर इट विल चेंज यू एज अ पर्सन, कि यू विल फाइंड थिंग्स अ लॉट इजियर। कि आपको, आपने, अगर आप बताओ, आप ऐसे टफ सिचुएशन में से आप निकले हो, आपको बाकी सारी चीजें बहुत इजी लगेंगी। दैट इज व्हाट एनसीसी विल ब्रिंग अ डिफरेंस इन यू। कि यू आर मैनेजिंग योर एनसीसी, यू आर मैनेजिंग योर स्टडीज, यू आर मैनेजिंग योर सोशल लाइफ। आप सब कुछ मैनेज कर रहे हो। आप घर जाके अपने अगर फैमिली या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो आपको इतना अच्छा वो मैनेजमेंट सिखा रहा है। दैट इज व्हाट विल चेंज यू। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को देगा। यू विल हैव सर्टेन सेट ऑफ जूनियर्स हु यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। अगर आप, आपके कर्म उनके कर्म से बहुत ज्यादा मिलेंगे फिर। जैसे सर मैं आपको बताता हूँ, ऑल इंडिया बेस्ट कैडेट सीनियर डिवीजन एयर 2023 वाज लीडिंग फ्लाइट कैडेट वी साई सुब्रमण्यन। ही इज फ्रॉम माय सेम कॉलेज। वो मेरे डायरेक्ट सीनियर। 2 साल से कॉलेज में ही रिटेन हुआ है गोल्ड। तो ऐसे जो सीनियर्स, ही इज जस्ट वन सीनियर। और बाकी मेरे इतने सारे सीनियर्स हैं जिन्होंने बहुत कुछ मेरे लिए, उनका टाइम स्पेंड करके उन्होंने मुझे इम्प्रूव किया, एंड मैं वो अपने जूनियर्स के लिए करूँ। तो दैट इफ इट गोज ऑन, यू आर गेनिंग सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन यू। आप हो अभी भी 18, 19, 20 साल के लौंडे, बट आपके अंदर इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया है कि आप 20 बच्चों को आप खुद संभाल रहे हो। आप इतने बड़े बड़े 600 700 कैंप्स में अगर आप कैंप सीनियर हो, आप उन कैंप सीनियर्स, आप वर्क डिवाइड करके आप सब कुछ सिखा रहे हो उनको। इट विल ब्रिंग इन चेंज 101%। सो दैट चेंज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एफिशिएंट चेंज आई फील। You will learn to manage it. Sir, as you mentioned, it is exactly what message I'd give to everyone. It is the will to do. Agar you may have all the sets, all the qualities, all the skills in the world, but if you're not willing to go for one extra round, one extra hour, one extra, whatever you have, अगर आप वो एक एक्स्ट्रा माइल जाने की आप अंदर से चाह नहीं लाओगे, तो वो जब आपको वापस मिल रहा होगा वो एक्स्ट्रा, आपको बहुत बेसिक सी चीज मिलेगी। तो ओनली वन सजेशन इज डोंट स्टॉप, नेवर स्टॉप। टेक अ ब्रेक इफ यू वांट टू, बट डोंट स्टॉप। हमेशा करते रहो, हमेशा पढ़ते रहो, हमेशा सीखते रहो, एंड दैट इज व्हाट विल टेक यू माइल्स एंड माइल्स अवे। अभी आई एम नॉट एट दैट स्टेट कि मैं और ज्ञान दूं आपको, बट जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है मैंने वो शेयर किया आपके साथ, एंड होपिंग कि someone or the other picks up one or two things from here, and if it helps them, then मेरा काम हो गया। Thank you so much for joining with us. Thank you, Prasad. Thank you so much, जय हिंद सर।